अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुस्तफ़ा। आपका माइक म्यूट है। बस वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो 2 घंटे का डॉक्टर खदीजा का लेक्चर था। अब स्टूडेंट्स को डायरेक्ट कर दिया, दे विल बी कमिंग हियर। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नाउ यू सलाम। कैन हियर मी। यस। ओके, आ गए स्टूडेंट सारे? अभी कितने आ तक गए? तो 3-4 ही आए हैं। अच्छा, चले मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक, मैं 5 मिनट्स वेट करके फिर स्टार्ट कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अटेंडेंस स्टार्ट में ही ले लें? 15 मिनट के बाद बस ले लें। क्लास के 15 मिनट के बाद ठीक होता है ना, उसमें जो आने उसके बाद अगर कोई चला भी जाए तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। हम लेक्चर हॉल में भी आमतौर पर 15 मिनट पे अटेंडेंस लेते हैं। सो आई वुड लाइक कि 15 मिनट पे अटेंडेंस हो। बाकी इनकी ठीक मर्जी है, दे आर एडल्ट लर्नर्स, दे मस्ट नो इट कि जी। हाँ। थैंक यू सर। अभी हम लोग आई थिंक 64 स्टूडेंट्स हैं, शुड बी गुड टू स्टार्ट।
हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, मेरा ख्याल आ जाएंगे बाकी Thank जो you. हैं, I'll come तो फिर after 15 minutes and I'll take ठीक attendance. है। Students, if you can turn on your videos, I'll just come and take. I will not disturb the lecture. And then after 10-15 minutes, I'll come and I'll take quickly attendance. Thank you, sir. मैम ओके, मैम क्या हो गया? सर वो मैम से पूछना था कि जिनकी वीडियो ऑन होगी सिर्फ उनकी अटेंडेंस मार्क होगी या सबकी होगी जिनकी नहीं भी है? कल तो यही है जिनकी वीडियो ऑन होगी, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रहा है, वीडियो इसलिए हम मजबूरन कर रहे हैं कि आप लोगों के पास जो क्लास फेलोज हैं उन्होंने अपने नाम से नहीं लॉग इन किया हुआ, कोई लॉयन है और कोई चीता है, कोई इस तरह के नाम भी है ना, तो वो अटेंडेंस के लिए फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके तो उसको कर लिया जाता है। ओके मैम, सर ठीक है। ओके ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी स्टार्ट विद टुडेस क्लास, दैट इज the discussion about the bone marrow, because before we study the different cells formation we should be very clear कि what is bone marrow, थोड़ा सा उसकी physiology. I'm not going into details of histology of bone marrow, we'll just see concept of bone marrow कि what basic things you need to learn for the formation of blood cells from bone marrow, हम उस पे concentrate ज़्यादा करेंगे. Then we'll look upon the sites of erythropoiesis. Erythropoiesis is red blood cells production. उसकी sites कौन सी हैं? और आज के lecture में हम will only enlist the stages of erythropoiesis. Tomorrow inshallah we'll take up the stages in detail कि हर stage में change क्या आती है. So hematopoiesis, if we talk about, that is the heme is for blood, poiesis is for synthesis. तो ब्लड के सारे सेल की सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो प्रीनेटल यानी बिफोर बर्थ दे आर फॉर्म, दीज सेल्स स्टार्ट फॉर्मिंग फ्रॉम द yolk sac, मेसोडर्मल लेयर से दे स्टार्ट फॉर्मिंग, एंड लेटर ऑन, यानी इनिशियली, अभी मैं आपको आरबीसी में आगे डिटेल बताऊंगा किस तरह सब्सिक्वेंट होता है, बट जनरली स्पीकिंग इनिशियली दे आर स्टार्टेड they start forming from the yolk sac, and in middle trimester of pregnancy, you all know pregnancy has 3 trimesters. First 3 months is first trimester, second 3 months is second, and third is last trimester is generally labeled. Now from the middle trimester, the liver and spleen, they may also play a role and result in formation of different red blood cells and other cells of the body. This is prenatal. Then if we talk about in the last trimester, bone marrow also starts forming the red cells. So in first trimester, generally speaking, yolk sac, in second liver starts, and in third bone marrow also starts. यहाँ पे भी liver कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा होता है, बल्कि even postnatal में फिर जब पहुंचते हैं जब हम, तो in postnatal after birth the yolk sac obviously is not there, liver and spleen also stop forming, then mainly the bone marrow is going to form the red blood cells. Extramedullary कुछ hematopoiesis होती है in the time of need. Bone marrow के अलावा भी there can be, we'll study in subsequent section detail के कैसे होती है. But for the time being, for hematopoiesis, you all should be very clear that this hematopoiesis is starting in the prenatal period, first trimester in the yolk sac, second in liver and spleen, and third trimester में bone marrow के अंदर, लेकिन इसमें साथ liver भी form कर रहा होता है. Yolk sac will start decline, but liver इस तक चल रहा होता है, but after birth, postnatal period में bone marrow and some extramedullary other than the bone marrow, some parts may play role in hematopoiesis. एक चीज मैं स्टार्ट में बता दूं, by this lecture a lot of content is from Guyton, but again I'll advise कि मेरा आज का भी और कल का भी लेक्चर आप सिर्फ लेक्चर से करें तो you will be at more ease, because ये मैंने एक सिस्टमैटिक तरीके से किया हुआ है. बाकी अगर obviously लॉन्ग टर्म नॉलेज, उसके लिए गाइटन पढ़ना बहुत जरूरी है, you must read it, लेकिन उसके साथ जो एक है कि मैंने आपको यहाँ पे जो है वो किया हुआ है, जो ऑर्डर में एक करके किया है, सो इसको आप फॉलो करें. नाउ दी बोन मैरो में अगर हम देखें
आई थिंक दिस स्लाइड इज क्लियर टू एवरीवन कि प्रीनेटल और पोस्टनेटल पीरियड में. नाउ बोन मैरो, द लोकेशन ऑफ द बोन मैरो, it is a gelatinous material found within the cavities of the bones. ठीक है, medullary canals of the long bones या different bones की cavities के अंदर जो एक material होता है, that is called the bone marrow, gelatinous material, and there are two types of it. शायद आपने जर्नल हिस्टोलॉजी में कुछ थोड़ा सा इसका पढ़ा होगा. रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो. रेड बोन मैरो इज एक्टिव and is responsible for hematopoietic cells production. Not only RBCs but all other cells production के लिए भी red bone marrow is playing important role. It is active bone marrow while the yellow bone marrow is inactive. Yellow bone marrow जो है that is inactive and it is forming, composition is mainly of adipose cells. That's why it's fatty yellowish color. So bone marrow की location जो है, it should be very clear that in the cavities of the all long bones, especially medullary canals, जो bone के अंदर होती हैं, and types are red bone marrow and yellow bone marrow. Red bone marrow is active, formation, responsible for formation of hematopoietic cells, while yellow bone marrow is inactive and is composed up of adipose cells. ठीक है जी. अब रेड बोन मैरो पे अगर हम बात करें, प्रोड्यूस ऑल ब्लड सेल्स एक्सक्लूसिवली एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन जो है दैट इज नॉट थ्रू द बोन मैरो. लिम्फोसाइट जो हैं वो यू विल स्टडी लेटर ऑन कि वो जो है थाइमस और उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग होती है और उसका एक अपना है, और लिम्फ नोड्स और उनकी इन्वॉल्वमेंट है जहां उसकी प्री प्रोसेसिंग, मैचुरेशन, यू विल स्टडी इन इम्यूनिटी. बट बाकी जो ब्लड सेल्स हैं दे आर सिंथेसाइज्ड, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रेड बोन मैरो. एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं. ल्यूकोसाइट्स, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स, ग्रेनुलोपोइसिस उसी से नाम है. मोनोसाइट्स, मोनोसाइटोपोइसिस. और इवन प्लेटलेट्स के लिए भी उनको हमने कहा था कल लेक्चर में, आपको याद होगा, मेगा कैरियोसाइट्स, तो उसको मेगा कैरियोपोइसिस, मेगा कैरियोसाइटोपोइसिस. So erythropoiesis, granulopoiesis, monocytopoiesis, megakaryocytopoiesis, these all cells are produced in the red bone marrow. Then if we'll move, इसमें bone marrow red में और भी functions हैं, like iron storage भी उनका function है. So you should keep it in mind, iron storage type function भी इसके हैं. Now this red bone marrow may change to yellow bone marrow with age. और ये कन्वर्जन जो है ये स्टार्ट होती है एट द डिस्टल एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स. डिस्टल एंड से पहले शुरू होके फिर प्रॉक्सिमिटी की तरफ आता है. सो यू शुड आल्सो बी क्लियर कि रेड बोन मैरो हमेशा रेड नहीं रहता, बल्कि दिस कैन बी प्रेजेंट ओवर देयर. ठीक है जी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये जो है रेड बोन मैरो जो है वो दैट इज प्लेइंग रोल इन दी सॉरी बैक स्लाइड पे ही. सो आई वाज टॉकिंग कि चेंज टू येलो मैरो with age. Conversion site starts at the end of at the distal end of long bones. So I think you all are clear about this slide. Red bone marrow is responsible for production of the red blood cells. Along with red blood cells, the leukocytes, the monocytes and platelets formation. Lymphocyte यहाँ फॉर्म नहीं होते. और एक और नेक्स्ट बात ये कि red bone marrow may change to yellow marrow with age. जी क्वेरी पूछें, क्या पूछना है? सर वो पिछले स्लाइड्स के थोड़ा सा ओवरव्यू देते सर. कौन सी स्लाइड का?
सर वो शुरू से सर। वो भी आखिर में दोबारा मैं रिवाइज करा दूंगा। ओके सर। सो हाँ जी, अच्छा उसके बाद आते हैं येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो सर क्लियर। जी जी बोले। सर आपसे कशमाला ने भी कोई बात करनी है, उनका माइक ऑफ है। तो मुझे उनके मैसेज पे कर दें। ओके सर, मैं उसे कहती हूँ। Okay, then next is the yellow bone marrow, right? सर स्लाइड शो नहीं हो रही सर। अच्छा स्लाइड नहीं शो हो रही, एक नो सेकंड। सर। ट्रबल शूटिंग ये जो बीच में आती है। एक मिनट मैं कर रहा हूँ शेयर वो जरा। हाँ जी होगी शेयर। यस सर। यस सर अभी हो Okay. गई सर। यस सर। जी जी ओके। द येलो बोन मैरो इट इज नॉट सीन एट बर्थ। मैंने आपको जैसे कहा कि शुरू में ये नहीं होता, रेड मैरो होता है, बट रेड मैरो इज कन्वर्टेड टू येलो बोन मैरो। So it start appearing at the age of 3 to 7 years. This start appearing at the age of 3 to 7 years and it constitutes of adipose tissue. So bone marrow is of two types, red bone marrow and yellow bone marrow. Red bone marrow is for the synthesis of the cells, while the येलो बोन मैरो इसमें एडिपोस टिश्यू ज्यादा होता है। और सिंथेसिस ऑफ सेल में रेड बोन मैरो मैंने आपको बताया कि एक्सेप्ट द लिम्फोसाइट्स ऑल द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड इन दिस। देयर आर सम अदर सेल्स इन द बोन मैरो आल्सो, फाइब्रोब्लास्ट्स which may result in formation of reticular connective tissue, collagen type 1 type 2, macrophages, some macrophages may be over there। फिर osteoblast and osteoclasts भी होते हैं, which you will study in parathyroid hormone physiology में आपको बताएंगे, because they are concerned with the bone metabolism। osteoblast with the bone synthesis and osteoclasts with the bone breakdown। ये सारे cells भी होते हैं। adipocytes होते हैं, endothelial cells forming sinusoids, mast cells and dendritic cell। ये सारे cells आपको बस आइडिया हो, नाम इन सब के नाम भी याद रखें, बट आपको ये जरूर ध्यान में होना चाहिए कि ये सारे जो सेल्स हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द बोन मैरो, राइट। देन वी विल मूव अहेड। There are some problems that may occur with bone marrow. There are some conditions in which the bone marrow mass may increase, which are called bone marrow hyperplasia। The bone marrow mass may increase, ठीक है जी, that increase is called bone marrow hyperplasia। This may occur in response to hemolytic anemias, like anemia जब हो रहा होता है, ठीक है, तो उस anemia के अंदर इशू ये आता है कि देयर में बी ब्रेकडाउन ऑफ हेमोलिटिक में हेमोलिसिस होता है, ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी, तो दैट मे कॉज द बोन मैरो टू बिकम हाइपर एक्टिव, ठीक है। सो दैट हाइपर एक्टिव में हाइपर एक्टिविटी से mass may increase and bone marrow hyperplasia can occur। Then similarly condition in which bone marrow mass decrease, there are some conditions। एक सेल टाइप या सारी सेल टाइप्स का
सारे के सारे सेल टाइप्स कम हो जाएं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। लाइक जो न्यूट्रोफिल अगर कम हो तो उनको न्यूट्रोपिनिया, लेकिन अगर सारे सेल कम हो तो पैनसाइटोपिनिया। साइटो फॉर सेल्स, पिनिया इज फॉर डेफिशिएंसी, पैनसाइटोपिनिया सारे सेल्स की डेफिशिएंसी होगी। सो बोन मैरो या तो हाइपर एक्टिव भी हो सकता है, बोन मैरो में हाइपोप्लेजिया में सफर फ्रॉम हाइपोप्लेजिया किसी एक सेल टाइप के लिए या सारी सेल टाइप्स के लिए, या बोन मैरो एप्लेजिया कैन अकर इन विच देयर मे बी टोटल स्टॉपेज ऑफ एक्टिविटी, कि बोन मैरो की डिस्ट्रक्शन हो जाए बाय रेडिएशन और सम अदर प्रॉब्लम्स दैट मे अकर टू severe extent of malignancies, or there may be some other conditions. तो उन सारों में the bone marrow will stop producing any type of cell, and obviously that is a big issue to the homeostasis and that may have a lot of problems. So bone marrow का अभी आपको मैं दोबारा पीछे से कॉम्प्रीहेंड करूंगा अगर, तो दो तीन बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वो ये कि देयर इज अ रेड बोन मैरो, देयर इज अ येलो बोन मैरो. Red bone marrow is concerned with the production of the cells except lymphocytes, right? Bone marrow Yellow cancer bone और marrow, bone marrow yellow cancer bone और bone marrow एप्लेसिया सेम थिंग है या डिफरेंट है? कौन सी वाली? कैंसर होता है ना बोन मैरो का, और ये बोन Sorry, मैरो एप्लेसिया। हाइपोप्लेजिया में कम हुआ है, कुछ ना कुछ सेल बन रहे हैं. एप्लेजिया में देयर इज एब्सोल्यूट नो प्रोडक्शन, टोटल स्टॉपेज है ना. ठीक है. ओके, सो आई वाज टॉकिंग कि बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो. अब येलो बोन मैरो के अंदर जो है वो एडिपोज टिश्यू और सारा वो है. फिर मैंने कहा कि देयर आर सम अदर टाइप ऑफ सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, वो सारे भी हैं बोन मैरो के अंदर. एंड देयर आर प्रॉब्लम्स विद बोन मैरो लाइक बोन मैरो हाइपरप्लेजिया, हाइपोप्लेजिया और एप्लेजिया. ये तीन कंडीशंस हैं आपके ज़हन में होनी चाहिए कि बोन मैरो को प्रॉब्लम भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि बोन मैरो जो है वो थ्रू आउट एक जैसा ही रहे. लेकिन अगर बहुत ज्यादा मसला आ जाए और देयर आर सम कंडीशन इन विच बोन मैरो ट्रांसप्लांट, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन बुक बट नाउअडेज दिस इज बिकॉज डन ओवर देयर. सो मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट देना जरूरी है कि लाइक इन कंडीशंस ऑफ एप्लास्टिक एनीमिया, सम केसेस ऑफ बीटा थैलेसीमिया, यू विल स्टडी इन डिटेल थैलेसीमिया लेटर ऑन, leukemias or sickle cell anemia, the bone marrow transplant is given, that is transplanted. कैसे होता है, किस तरह, is beyond the scope at the present. आपको इतना सिर्फ आइडिया हो कि there may be bone marrow transplant which is given in some conditions which are creating a lot of problems, right? Then up till this time we have studied the overview of the bone marrow. Just इसको एक नजर देख के रिवाइज करें जरा, खुद ही आप देखें जरा पिछली दो तीन चीजों को, just write it down कि what is bone marrow, what are the types of bone marrow. Question number 1, what is bone marrow? Number 2, what are the types of bone marrow? What are the functions of red bone marrow? What abnormalities can occur in bone marrow? And in which conditions bone marrow transplant may be required? लिख लिया जी सबने? Excuse me, sir. जी जी. Last two questions आप repeat कर दें, please.
अच्छा ये सर मेरे पास आप लिख के सारे रखी। रिपीट करवा देते हैं, एक बार रिपीट करवा दें सर। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं एक मिनट, मुझे जुबानी बनानी पड़ेगी बिकॉज दे आर नॉट रिटन ओवर देयर एनीवेयर। मैंने ये कहा था कि आपको ये पता हो कि व्हाट इज बोन मैरो, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन मैरो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेड बोन मैरो, ठीक है, रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ हाइपर एंड हाइपो एक्टिविटी ऑफ बोन मैरो, एंड लास्ट ये था कि व्हाट आर द conditions in which bone marrow transplant can be given. So main overview nutshell अभी तक अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर दीज स्लाइड्स कि आपको थोड़ा सा बोन मैरो का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, आपको पता हो कि बोन मैरो क्या होता है, कैसे करते हैं उसको, जो है उसके फंक्शन क्या है, रेड बोन मैरो क्या है, येलो क्या है जिसमें सिर्फ एडिपोज टिश्यू है, रेड जो है वो फॉर्मेशन कर रहा है फॉर सेल्स एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स। ये क्वेश्चन इसलिए हैं, ये कोई पेपर में नहीं आने वाले, आई एम जस्ट गिविंग यू कि आप इसको साथ साथ आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए थ्रू दीज क्वेरीज। अब हम आगे चलते हैं। सर अगर आप सर यहाँ जो बोन सर मैरो में जो क्वेश्चन के प्रॉब्लम्स है बारे में सर, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे तो बहुत अच्छा होगा सर। बेटा आप खुद पढ़ो भी ना, सिर्फ आगे से क्वेश्चन मत किया करो यार। ओवरव्यू में सर कितनी बार दे चुका, मैं कह रहा हूँ अजीब बात कर रहे हो यार, मैं आपको बता रहा हूँ 3 दफा तो मैं रिवाइज करा चुका, और ओवरव्यू क्या देना है, आप इसको खुद पढ़ो बैठ के और फिर नहीं समझ आएगा तो पूछ लीजिएगा। ओके सर सर। बोन मैरो में जो प्रॉब्लम है सर हाइपरप्लेजिया, उसके साथ एक हाँ पॉइंट था हिमोलिटिक एनीमिया, सर ये दोनों एक ही चीज है हिमोलिटिक, हाइपरप्लेजिया और मैं आपको बताता हूँ बोन मैरो में अगर hemolytic anemia होगा तो that anemia will cause the obviously breakdown of RBC उसमें हुआ है, RBC काउंट कम हो जाता है तो उसकी वजह से that में act as a stimulant, क्योंकि उसमें रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस में हम पढ़ेंगे कि जब भी हाइपोक्सिया होता है बॉडी में, रिलेटिव ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, तो वो जाके स्टिमुलेट भी करती है। आज के लेक्चर में थोड़ा सा उस पर पॉइंट आएगा कि जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है पेरिफेरी में तो वो भी बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है कि ज्यादा सेल प्रोडक्शन करे। और अगर बोन मैरो को बाकी चीजें मिल जाएं सेल प्रोडक्शन के लिए, कि उसमें मौजूद लाइक आरबीसी के एग्जांपल में ले लूं कि अगर आयरन मौजूद हो बॉडी में, बॉडी के अंदर जो है वो प्रोटीन कंटेंट भी हो, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, तो देन बोन मैरो विल ओवर एक्ट, ठीक है। और वो ओवर एक्शन जो है, उस ओवर एक्शन की वजह से फिर ये होगा कि वो बोन मैरो जो है दैट विल कॉज द एक्सेसिव एक्टिविटी एंड विद रिजल्टेंट इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल काउंट इन एन अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर दैट डेफिशिएंसी, कि वो जो कम हुआ है उस डेफिशिएंसी को जो है वो कंपनसेट करेगा, ठीक है जी। अब आते हैं आरबीसी फॉर्मेशन बिफोर बर्थ। देयर इज अ, मैंने आपको ओवरव्यू वहां बताया था जनरली। अब एक है यॉर्क सैक वाली जो स्टेज थी, ठीक है, यॉर्क सैक वाली स्टेज को आरबीसी फॉर्मेशन में कहते हैं मीजोब्लास्टिक स्टेज। नॉर्मल आरबीसी में आई होप यू ऑल नो इट के न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, लेकिन यहां पे आई एम टॉकिंग इन प्रेगनेंसी, ठीक है, प्री नेटल पीरियड, बच्चे के अंदर जब बन रही होती हैं तो दैट फर्स्ट स्टेज शुरू में जब बनना शुरू करती हैं आरबीसी, दैट इज कॉल्ड मीजोब्लास्टिक स्टेज, दैट इज कॉल्ड मीजोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है जी, दैट इज कॉल्ड द मीजोब्लास्टिक स्टेज। दैट मीजोब्लास्टिक स्टेज इज इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि दैट इज forming the nucleated red blood cells, that forms the nucleated red blood cells, and these cells are formed in the yolk sac and mesothelial layers of the placenta। ये थर्ड वीक में ऑप्टिमम सबसे ज्यादा बेहतर हो रही होती है फॉर्मेशन। सो दैट इज कॉल्ड द मीजोब्लास्टिक स्टेज, पहली स्टेज जो है दैट इज कॉल्ड मीजोब्लास्टिक स्टेज, ठीक है।
देन सेकेंड इज द हेपेटिक स्टेज, यानी जब लिवर में हमने कहा था बनना शुरू करता है, तो मेनली लिवर में एट 6 वीक्स स्टार्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट 6 वीक्स पे लिवर फॉर्म दी ब्लड सेल्स, आरबीसीज, यहाँ लिवर फॉर्मेशन शुरू करता है। किसी हद तक स्प्लीन एंड लिम्फोइड टिश्यू में आल्सो फॉर्म, बट प्रीडोमिनेटली इसका नाम ही हेपेटिक स्टेज है कि लिवर इज फॉर्मिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। ठीक है जी। सो mesoblastic stage, first nucleated RBCs in the yolk sac and mesothelial layers of the placenta, 3rd week के अंदर। then hepatic stage, at 6 weeks liver form the blood cells और spleen and lymphoid tissue form the blood cell, but liver predominant है, ठीक है, इस liver की वजह से इसको hepatic stage कहते हैं। mesothelial layers में और yolk sac मिली न्यूक्लिएटेड आरबीसीज, तो उसको कहते हैं जो है मीजोब्लास्टिक स्टेज। हेपेटिक स्टेज में 6 वीक्स पे जाके लिवर फॉर्म दी ब्लड सेल्स, हेपेटिक स्टेज। और उसके बाद थर्ड जो आफ्टर बर्थ है, दैट इज माइलॉइड स्टेज। फ्रॉम द 3rd month onwards द बोन मैरो ग्रेजुअली बिकम्स द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और ये जो है बिफोर बर्थ जो है, यानी आई एम टॉकिंग नो अबाउट टिपिकल, अगर हम देखें तो लास्ट मंथ में, यानी लास्ट ट्राइमेस्टर, आखिरी 3 महीनों के भी लास्ट मंथ में सिर्फ बोन मैरो रह जाता है। लास्ट 3 मंथ्स में बोन मैरो एक्टिवली शुरू हो जाता है, 3rd मंथ से स्टार्ट कुछ ना कुछ होता है, बट दी ग्रेजुअली बिकम्स द सोर्स ऑफ आरबीसीज। बट लास्ट मंथ में लिवर की फॉर्मेशन, यॉर्क सैक की भी ऑब्वियसली नहीं रही, प्लेसेंटा की नहीं है, देन लिवर, स्प्लीन, वो भी सब कम हो जाता है, और सिर्फ बोन मैरो जो है दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर्मिंग द रेड ब्लड सेल्स इन द लास्ट स्टेज। ठीक है जी। सो 3 स्टेजेस, मीजोब्लास्टिक स्टेज, हेपेटिक स्टेज एंड माइलॉइड स्टेज। ये आपको तीनों, ये गाइडलाइन के अंदर ये लिखा भी हुआ है कि किस तरह, यू कैन स्टडी ओवर देयर आल्सो, बट बड़ा आसान सा है कि शुरू में यॉर्क सैक है, उसके बाद मिडिल ट्राइमेस्टर मेनली लिवर है, और 3rd में आके जो है बोन मैरो, एंड पे आके एक्सक्लूसिवली। बस ये 3 लाइंस मस्ट नो वाली हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर बर्थ, अब आगे चुके देखिए, लास्ट मंथ में बोन मैरो था, तो बोन मैरो ऑफ द ऑल बोन्स विल फॉर्म द रेड ब्लड सेल अप टिल द 5 years of age। 5 year of age पे bone marrow of all bones are forming the they are forming the red blood cells। all bones they are forming the red blood cells। the bone marrow of the long bones, proximal humerus और टिबिया के अलावा बाकी जितनी लॉन्ग बोन्स हैं 20 years के बाद ये रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाती। proximal humerus एंड टिबिया, इनमें कुछ ना कुछ फॉर्मेशन रहती है, लेकिन अदर लॉन्ग बोन्स देयर इज नो मोर रेड ब्लड सेल्स आफ्टर द एज ऑफ 20 years। ठीक है, 20 years के बाद नई फॉर्मेशन होती। मोस्ट रेड सेल्स कंटिन्यू टू प्रोड्यूस्ड इन द मैरो ऑफ मेम्ब्रेनस बोन्स लेटर ऑन, यानी बाद में जो रेड ब्लड सेल बॉडी में बनते हैं दे आर इन द वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स और आइलियम। हिप बोन का एक पार्ट है आइलियम। ठीक है, इन थिन बोन्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन रहती है। सो बिफोर बर्थ तो हमने कहा कि देयर आर 3 स्टेजेस, द mesoblastic stage, hepatic stage, and the 3rd one is the bone marrow formation। ठीक है, माइलॉइड स्टेज जिसको हमने नाम दिया था। सो ये 3 स्टेजेस आ गई। अब आफ्टर बर्थ बोन मैरो है, फॉर ऑल बोन्स विल फॉर्म द रेड ब्लड सेल्स अप टिल द एज ऑफ 5 years।
the bone marrow of long bones except tibia और proximal humerus का एंड के अलावा बाकी सारी बोन्स जो हैं देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल आफ्टर द एज ऑफ 20 इयर्स। हाउएवर बाद में जो रेड सेल प्रोडक्शन है दैट विल कंटिन्यू इन दी वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स और आइलियम। वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स एंड आइलियम, वहां पे ये कंटिन्यू रहती है। ठीक है जी, ये होगी आरबीसी फॉर्मेशन आफ्टर। अब ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, बुक के अंदर भी ये ग्राफ है कि शैफ्ट की जहां तक बात करें टिबिया और फीमर के शैफ्ट में ये आप देखें तो इनिशियली ये 100% सेलुलरिटी पर परसेंट जो है ये शुरू में सारे सेल्स बना रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली विद एज आप देखें टिबिया की उसने एग्जांपल ली कि 18 साल की एज पे जाके ये खत्म हो जाता है। फीमर भी एक मेजॉरिटी मैक्सिमम 20 इयर्स की एज तक खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद फिर 7 to 8 इयर्स पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुई इन वर्टिब्रा, दिस ब्लैक लाइन, द स्टर्नम रेड लाइन एंड द रिब्स। तो ये जो है प्रोडक्शन रहती है एंड दिस ग्रेजुअली डिक्लाइंस बट परसिस्ट अप टिल द एज ऑफ 70 इयर्स। ये तीनों मिला के अच्छी खासी नॉर्मल जो रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है वो जो अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट वो प्रोवाइड हो जाती है यहाँ से। So this graph is showing us this is in age in years and on this axis is the cellularity percent। कि आप देखें टिबिया, फीमर, इन सब की जो प्रोडक्शन है that is declining by the age of 20 year, लेकिन जो वर्टिब्रा है, स्टर्नम है, रिब है, that will continue to produce the red blood cells। अब बोन मैरो सेल्स जो एरिथ्रोपोइसिस बनाते हैं दे आर कॉल्ड प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। ये आपको नाम याद रखने हैं, इसमें कोई वो नहीं है ऐसा। प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है जी। एंड द कमिटेड स्टेम सेल जो कि एरिथ्रोसाइट्स ओवरऑल, यानी जो पहले हीमोपोइसिस के सेल्स हैं वो प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल है, ठीक है। मास्टर सीरीज जिससे सारे सेल डिराइव हो रहे हैं, PHSC प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। इनसे आगे जिन्होंने बनाना है एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल, वो कहलाएंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। सिमिलरली जो और हर एक के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है वो दूसरे सेल जो बेजोफेल्स और इस तरह के अपने पहले प्रीफिक्स यही लगेगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं। स्टेम सेल मेन जिससे सारे सेल बन रहे हैं दैट इज द प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। एंड देन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट is for the red blood cell production। RBC की प्रोडक्शन के लिए the colony forming unit erythrocytes are the cells which are forming the RBCs from the production of RBCs from bone marrow। और इनको कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इन सेल्स की फॉर्मेशन को। there are some factors which will affect, which include growth inducers and differentiation inducers। अब ये दो टर्म समझ लें। ग्रोथ इंड्यूसर वो हैं जो कि सेल की वहां से ग्रोथ करेंगे, लाइक एरिथ्रोसाइट से पहले स्टेज के बाद जो है विल सी, अभी लेटर ऑन आपको मैं दिखाऊंगा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सबसे पहले बनाने में ग्रोथ इंड्यूसर। और फिर सेल जब बनता है तो वो एरिथ्रोपोइसिस के सेल्स में भी यू विल सी इन अ शॉर्ट टाइम कि इट विल पास थ्रू डिफरेंट स्टेजेस टू बिकम मैच्योर रेड ब्लड सेल। तो वो जो डिफरेंशिएट हो रही होती हैं स्टेजेस, उन डिफरेंशिएशन को जो इंड्यूस करने वाली चीजें हैं दोज आर कॉल्ड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एज रेगुलेटर्स ऑफ एरिथ्रोपोइसिस आल्सो, राइट। कि ये उसको बहुत ज्यादा रेगुलेट करने में इनका रोल है। सो द स्लाइड showing over here has 2-3 important points, I am repeating them, that pluripotent hemopoietic stem cell, these are the master cells for all red cell production, for all cells production except lymphocyte, ठीक है, हमने शुरू में कहा था। अब committed stem cell which are produced to which are responsible for erythrocyte production, RBC production, they are called colony forming unit erythrocyte, CFUE। और इनको जो आगे करने वाले हैं, जो इनको वहां से ग्रोथ करा रहे हैं,
दोज आर कॉल्ड, ज़ाहिर ग्रोथ करा रहे हैं, उनको साइज भी बढ़ा रहे हैं, दे आर ग्रोथ इंड्यूसर्स। और उसके टिपिकल एग्जांपल इंटरल्यूकिन 3 है। दिस इज साइटोकाइन प्रेजेंट इन द बॉडी, और इसके ज्यादा होने से फिर वो ग्रोथ इंडक्शन ज्यादा हो जाती है। और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर जो है, दैट वन ऑफ द मास्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज रिलेटिव ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, और इट इज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंशिएशन इंड्यूसर वाला, कि रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस के अंदर भी इसी का सबसे बड़ा रोल है, कि प्रीडोमिनेंटली हाइपोक्सिया जब होगा तो वो आरबीसी प्रोडक्शन को ज्यादा करेगा। अब वो जो आपका सवाल था कि बोन मैरो हाइपरप्लेजिया क्यों होगा, तो हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर भी जब हेमोलिसिस हो जाएगा, आरबीसी काउंट कम हो गया, तो उसकी वजह से देयर विल बी दी रिलेटिव हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मीन कि बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यू लेवल पे सही नहीं मिल रही, रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू लेवल। उसकी वजह से ये होगा कि ये जो है when the hypoxia is activated, that is going to cause differentiation more rapidly, और उससे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी ज्यादा एनहांस हो जाएगी। और ये हेमोलिटिक में इसलिए है कि सिर्फ ब्रेक डाउन हो रहा है, आयरन डेफिशिएंसी में इसका फायदा नहीं होगा इतना ज्यादा, बिकॉज कि आयरन ही कम है, तो वहां से वो नई प्रोडक्शन कैसे कराएगा। सो दिस थिंग ऑल्सो नीड टू बी केप्ट इन माइंड। एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट ये ज़हन में रखें कि ग्रोथ इंड्यूसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, और डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा अगर हम देखें तो ये क्या है कि जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, दे अफेक्ट प्रोलिफरेशन ऑफ प्रोजेनिटर एंड प्रिकर्सर सेल्स, यानी प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी के प्रिकर्सर जो है, याद रखें, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स है प्रिकर्सर, जो हमने पिछली स्लाइड में किए। और ये सेल, अब ये जो ग्रोथ फैक्टर्स सारे हैं, दे सपोर्ट डिफरेंशिएशन ऑफ मैच्योरिंग सेल, और फिर आगे उनके फंक्शन भी एनहांस करने में इनका रोल है। सो दीज आर दी फैक्टर्स, ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स, व्हिच हेल्प इन सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब जब ये सारे सेल बन जाते हैं, वी टॉक टिपिकल अबाउट एरिथ्रोसाइट, लेकिन और सारे सेल्स भी जब बन जाते हैं, ठीक है, तो दे नीड टू ट्रेवल टू दी सर्कुलेशन ऑल्सो। तो अब उसको सर्कुलेशन में लाने के लिए जो है, देर आर सम केमिकल सब्सटेंसेस, C3 कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कुछ हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजेंस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल, एंड्रोजन में टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, मेल में टेस्टोस्टेरोन, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। कॉर्टिसोल एक टिपिकल एग्जांपल है, एंड सम बैक्टीरियल टॉक्सिन टू माइनर एक्सटेंट दे आल्सो प्ले रोल। सो अब ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सेल्स। अब ये सेल जो जब यहां से ट्रांसफर होता है, तो यू कैन सी इट, ये इनको रिलीज फैक्टर्स बोलते हैं, हार्मोन्स। और ये C3 कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में आप पढ़ेंगे C3 कंपोनेंट कहां से आता है। तो ये C3 कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो है, और हार्मोन्स, दे आर एक्टिंग एज रिलीज फैक्टर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ दिस। अब देखो ना, बोन मैरो, ये है बोन मैरो, ये है उसके साथ लाइनिंग जो ब्लड वेसल्स हैं, जो कि, और ये जो है ये साइनोसाइड, जो उसके बोन मैरो के अंदर उसका स्ट्रक्चर आपने हिस्टोलॉजी देखा हो, तो उसके अंदर ब्लड वेसल्स आर आल्सो देयर, और ये साइनोसाइडल कैपिलरी है, राइट, साइनोसाइडल कैपिलरी। ये एक आरबीसी यहां से आते हुए दिखाया गया इस डायग्राम के अंदर, यू कैन सी ओवर हियर कि वहां से आया। और आरबीसी जो है, दैट कैन पास थ्रू दिस नैरो कैपिलरी साइनोसाइट, और इसमें यहां से इट कैन एंटर इनटू द कैपिलरी, सो दैट सब्सिक्वेंटली इट दीज कैपिलरीज में रीच द जनरल सर्कुलेशन और बॉडी में। क्योंकि क्वेश्चन ये आता है ना कि बोन मैरो बन गए हैं, तो बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में कैसे आएंगे। तो बोन मैरो से ब्लड सर्कुलेशन में लाने वाली चीजें, दे आर रिलीज फैक्टर्स, राइट, C3 कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट और हार्मोन्स। और ये इसको यहां से आरबीसी की एग्जांपल ले लें, तो दे विल कॉज देम टू ट्रेवल इनटू द साइनोसाइडल कैपिलरी, और इन कैपिलरी से फिर these cells wave production will result in, similarly यहाँ पे ल्यूकोसाइड भी इसी तरह आता है,
और ये जो मेगा कैरियोसाइट्स है इनके ब्रेकडाउन से यहाँ प्लेटलेट्स बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पैसेज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स थ्रू दिस। अब हम आते हैं स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस पे। अभी तक हमने किया कि व्हाट इज द बोन मैरो, जस्ट एन ओवरव्यू कि बोन मैरो में आपको पता है बोन्स के अंदर लोकेटेड है ये, और इन द मेडुलरी कैविटी रेड बोन मैरो है एंड येलो बोन मैरो है। रेड बोन मैरो में इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेल्स प्रोडक्शन एक्सेप्ट लिम्फोसाइट्स, और येलो बोन मैरो में एडिपोज टिश्यू है। फिर हमने कहा बोन मैरो में देयर आर सम अदर सब्सटेंसेस आल्सो, other cells, osteoclasts, osteoblasts, fibroblasts, and so on. Many cells are there. फिर red bone marrow may be converted from 3 to 7 year onward to yellow bone marrow also. Yellow में adipose tissue ज्यादा है। फिर हमने later on कहा कि ये जो cells produce वहां हो रहे होते हैं, these are called hemopoietic। hemopoiesis के लिए जो है pluripotent hemopoietic stem cells, pluripotent hemopoietic stem cells PHSC, और उससे फिर जो आरबीसी बना रहे हैं दे आर द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। और फिर इनकी फॉर्मेशन के लिए देयर आर ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स। टिपिकल एग्जांपल ऑफ ग्रोथ इंड्यूसर इंटरल्यूकिन 3, और टिपिकल एग्जांपल ऑफ डिफरेंशिएशन इंड्यूसर वाज हाइपोक्सिया। फिर जब ये हम बन जाते हैं तो उसके बाद रिलीज फैक्टर्स जो है C3 कंपोनेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एंड along with that the cortisol hormone glucocorticoid category में, और androgens में like testosterone, they cause and some bacterial toxin, they may cause the movement of the substances from movement of these cells from the bone marrow to the sinusoidal capillary। और ये प्रोसेस है डायपिडीसिस है, ये ल्यूकोसाइट में आप थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे कैसे होता है, but they will travel through those sinusoidal capillaries and reach the travel from bone marrow to sinusoidal capillary and reach the circulation। अब एरिथ्रोपोइसिस के स्टेजेस में पहली वही है प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल, जिससे आगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट है। ये दो पॉइंट हम पहले क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। प्लूरिपोटेंट हेमोपोटिक स्टेम सेल जिससे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट है, जिससे आगे बनता है प्रोएरिथ्रोब्लास्ट which will convert to polychromatophil erythroblast। नेक्स्ट स्टेज इज ऑर्थोक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, जो के बाद में रेटिकुलोसाइट बनता है, which will ultimately be converted to erythrocyte। ये हैं इनके नाम, pluripotent hemopoietic stem cells, the colony forming unit erythrocyte कैटेगरी ने आरबीसी बनाना है। this will differentiate into, ये जो है that will differentiate into the proerythroblast, then polychromatophil erythroblast, orthochromatophil erythroblast, reticulocyte and erythrocyte। ये जाहिर है बोन मैरो के अंदर है, 4 to 5 days लेता है, एंड देन ये जो है प्रोसेस तकरीबन 2 days 1 to 2 days ब्लड के अंदर होके कंप्लीट होता है। सो ऑन एवरेज 7 days यानी 1 वीक के बाद सेल प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, अगर कुछ स्टिमुलस भी मिले। दिस इज ऑल्सो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट, ठीक है। विल स्टडी इन सब्सिक्वेंट रेगुलेशन में, हम डिस्कस करेंगे कि टाइमलाइन आपको कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, ठीक है। कि ये ऐसा नहीं होता कि किसी को अगर लाइक आयरन डेफिशिएंसी है तो आप आयरन दे दें तो फौरन आप अगले दिन कहें जी आरबीसी काउंट चेक कर लें। नो, इट विल टेक एटलीस्ट 1 week टू अपीयर। और वो भी मैं आपको बता दूं कि शुरू में रेटिकुलोसाइट ज्यादा होता है और वो काउंट ज्यादा होना भी इट इज एन इंडिकेशन कि एरिथ्रोपोइसिस, अगर आपने आयरन दी है तो उसके बाद एरिथ्रोपोइसिस इज मोर एफिशिएंट। अनदर व्यू, ये आपकी बुक के अंदर ही पिक्चर है कि प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट, ये स्टेजेस हैं जिनके नाम आपको आने चाहिए। अनदर व्यू, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, देन दी बेसोफिल, पॉलीक्रोमेटोफिल, इसको नॉर्मोब्लास्ट भी बाज बुक्स नाम देती हैं, देन रेटिकुलोसाइट 5 to 7 days में, और फिर मैच्योर रेड ब्लड सेल बनता है। और यहाँ पे दिस इज, ये जस्ट आज मैं आपको ओवरव्यू इनके नाम दे रहा हूँ, कल एक एक स्टेज को हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे, एंड देन वी विल सी दी मैच्योर रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, उसमें फिर क्या क्या आता है। सो दिस कंप्लीट्स टुडेज सेशन। आज आपने जो चीजें हमने की हैं, हमने सिंपली बोन मैरो को देखा है,
कि रेड बोन मैरो और येलो है, और रेड जो है सेल बना रहा है लिम्फोसाइट के अलावा, येलो में एडिपोज टिश्यू है, रेड का फिर हाइपरप्लेजिया हाइपोप्लेजिया हो सकता है, जरूरत ज्यादा होगी तो हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, और अगर कोई डैमेज होगा तो हाइपोप्लेजिया भी हो सकता है, और बिल्कुल डैमेज हो जाए तो एप्लेजिया भी हो सकता है। और फिर हमने कहा कि रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन जो है उसके लिए, ओवरऑल सेल्फ प्रोडक्शन के लिए, प्लूरिपोटेंट हीमोपोटिक स्टेम सेल्स, और दीज प्लूरिपोटेंट हीमोपोटिक स्टेम सेल्स जिनमें आगे फिर आरबीसी बनने हैं, तो दोज आर दी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। और जो एरिथ्रोसाइट्स हैं उनके आगे फिर जो है वो ग्रोथ, जो हमने कहा था ग्रोथ इंड्यूसर्स हैं लाइक इंटरल्यूकिन 3, डिफरेंशिएशन इंड्यूसर हैं लाइक हाइपोक्सिया, और वो सारे स्टिमुलेट करके तो जो सेल की डिफरेंट स्टेजेस हैं आरबीसी की, और फिर जो बोन्स मैंने आपको बताई थी बोन मैरो में कि जो उसकी स्टेजेस हैं कि पहले मीजोब्लास्टिक स्टेज है, फिर हेपेटिक और माइलर स्टेज। मीजोब्लास्टिक स्टेज में आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द यॉर्क सैक, ठीक है, देन मिडिल ट्राइमेस्टर में आके लिवर और थोड़ा बहुत स्प्लीन लिम्फ नोड में भी, और फिर बोन यहाँ स्टार्ट हुई है, बट मेनली लास्ट स्टेज में, लास्ट ट्राइमेस्टर में माइलर स्टेज है। और फिर आफ्टर बर्थ जो हमने डिस्कस किया कि बोन मैरो जो है वो ये होता है कि आफ्टर बर्थ up till the age of 20 years the bones will produce the red blood cell, but 20 years के बाद सिवाय जो है वो ह्यूमरस और टिबिया के प्रॉक्सिमल एंड्स के, बाकी लॉन्ग बोन सारी दे स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, ठीक है। However, इसके साथ द वर्टिब्रा, द रेब्स, द आइलियम और वो छोटी पतली बोन स्टर्नम, ये जो है ये आरबीसी प्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं। और जो आरबीसी प्रोडक्शन की स्टेजेस हैं, these are the proerythroblast, basophilic erythroblast, polychromatophilic erythroblast, orthochromatic reticulocyte, and all this. This is all for today. सर चलेंगे। जी बताएं बताएं। सर एक्सक्यूज मी, हमें वो बुक का पेज नंबर बता दिया करें, वो ऑन जो पीडीएफ है उसमें मिलती हैं ये टॉपिक के बारे में। पीडीएफ नहीं, आई विल मेक श्योर ये मिलना। एलएमएस पे आपका नहीं है अकाउंट? सर वो एक जनरल अकाउंट है, आप हमें पेज नंबर बता दिया करें ताकि हम उस तरह वो सर्च कर ले करें, उसके इतनी वो पेजेस मिलती हैं, टॉपिक नहीं है इस तरह वहां से। अच्छा, मेरे पास अभी बुक है नहीं, मैं असल में बुक तो मेरे पास अभी पड़ी, मुझे पेज नंबर ऐसे याद नहीं होगा। बच्चे आप उसमें जाओ ना, जो अपना ब्लड सेल्स वाला, ब्लड का पहला चैप्टर है एरिथ्रोसाइट्स वाला। जो आपने जी ये आप लोगों की मुझे ना उसकी आवाज नहीं आती। हाँ, ये किसी ने यहाँ मेंशन किया है, चैप्टर 33 पेज 445 है। आप देख लीजिए चैट में, ये किसी ने 33 चैप्टर पेज 445 है। इसको आप पढ़ें, मेन लेक्चर को रखें फॉर्मेट सामने, ठीक है, एंड देन स्टडी इट। टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टडी द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस, इनकी हर एक की डिटेल और फीचर्स ऑफ मैच्योर एरिथ्रोसाइट जो है ये हम कल करेंगे। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि ये आज और यस्टरडे वाला लेक्चर आपने पढ़ा हो। आई विल अगेन कंफर्म इट कि एलएमएस पे ये आप लोगों की क्लास पे अपलोड हो जाए, बिकॉज मुझे कल शाम ही बता दिया था मैडम रक्षंदा ने आपकी कि ये अपलोड कर दिया गया है, बट आई विल अगेन मेक श्योर कि आप सबको अवेलेबल हो जाए। सो दिस इज ऑल। जी क्या क्वेरी है, बताएं बताएं। सर ये अपलोडेड ऑलरेडी। सर ये काइंडली एक थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू। अच्छा, ये जिस स्टूडेंट को, किस चीज का ओवरव्यू बेटा? मैं ओवरव्यू 2-3 दफा तो सारा दे चुका हूं, अल्लाह के बंदे। अब और क्या ओवरव्यू? सर ये अभी स्लाइड आपकी ओपन है सर, इसका सर
इसका देखो, इसको मैंने सिर्फ नाम अभी लेने हैं क्योंकि मैंने इसलिए रोका है, ये कल हर स्टेज का हमने उसके फीचर्स, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं वो डिटेल करनी। अभी आप सिर्फ इतना रखें कि पहली स्टेज प्रोएरिथ्रोब्लास्ट है, देन एरिथ्रोब्लास्ट, फिर बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटोफिल, नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलस। अब इनके नाम आज आपको ओरिएंटेशन हो जाए, इनकी हर एक के अंदर माइक्रोस्कोपिक डिटेल क्या आ रही है वो अभी ना करें, वो मिक्सअप हो जाएगा सारा। आई डेलिबरेटली स्टॉप्ड ओवर हियर कि कल हम इंशाल्लाह जब फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो इनके हर एक के अंदर साइज, इनके स्टेजेस, इनके न्यूक्लियस, कहाँ अपीयर हीमोग्लोबिन हो रही है, कहाँ न्यूक्लियस डिसअपीयर, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो वो सारा हम जो है वो करेंगे कल इंशाल्लाह। अभी सिर्फ इनके नाम करें। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। एक और क्वेरी है, कोई ठहरना देखने क्या है। सर जी, ये 1 मंथ के बाद हम एग्जाम कैसे देंगे? यार सब्र करो, एग्जाम की पड़ी है। सर जी लेफ्ट कर जाएं। सन लीव कर जाएं। कर जा भाई, कर जा। सर हैं कि चले गए? सिर्फ 30 बच्चे रह गए कर जो लीव। ऑन कर दे लीव यार, सब चले गए। यार नहीं लीव करना ना, 2 मिनट बात करते यार। हमारे इतने अच्छे अच्छे तो दोस्त बने हैं अब। नहीं हुई। असद भाई अपनी सेक्सी आवाज बंद करो। असद यार वो अटेंडेंस नहीं ली। अटेंडेंस ली तुम्हारी। तेरी नहीं हुई। क्यों नहीं ली यार, बता। ओए इरफान, मुझे एग्जाम की बड़ी जल्दी है। यार उससे एक दिन पहले पढ़ना होता है ना। असद सबर कर ले, हो जाए। यार वो मैम से क्या तो यार मैम ने फारसी में बोला था कि जो वीडियो पे आएगा उसकी अटेंडेंस होगी। यार वो तो नहीं बोला था यार, तो अरबी में बोल दे। यार असद मैसेज करो ना उसे यार। क्या मैम ने बोला था जो वीडियो कॉल पे आएगा, मतलब अपनी वीडियो दिखाएगा उसे। फिर मैंने खाना खाना था, मैं को नहीं आया वीडियो पे। सारे लेक्चर मेरा तो खाने ही रहे। असद हमने नहीं मुंह धो के आए। असद हाँ सब चले गए हैं ना, सिर्फ बच्चे हैं। हाँ चले। मैम से बात कर लो यार, मैम से बात कर लो यार प्लीज यार। तू चला जा, बाकी कोई जाए ना। क्यों, मैं क्यों जाऊं?
बच्चे बच्चे नहीं है, अच्छा चुप बैठ जा, कुछ अच्छा ऐसा चेक करना यार, हुई है अटेंडेंस हमारी को नहीं हुई। अच्छा मोहम्मद हमादुल हसन जी अटेंडेंस पूरे 2 बोलो। लेक्चर में इसने हमाद अटेंडेंस बोलो। प्रेजेंट सर। अच्छा तो ऐसा यार प्रिंस यार मैम से कहो ना यार प्लीज यार। सीआर एब्सेंट है। असद गब्बा। असद असद ओ असद। प्रतीक भाई क्या शुरू कर रहे हैं आप? असद सीआर का बच्चा आया। आप लोग कुछ देखना मैंने तकदीर से अमीर मैरी के गजल चला दे यार। लगाओ यार, कोई ना कोई लगाओ, कोई चीज लगाओ। बेवफा इंसान भी है यहाँ पे। हमाद कश्मीरी। हाँ सुना। शायद बड़े बेवफा लोग हैं यहाँ पे ग्रुप में ना। यार बहुत बेवफा है, छोड़ जाते हैं जल्दी। कसम से चले भी गए हैं, दफा हो गए हैं। अरे मुझे आने सुभान अल्लाह। भाई ये किसने भी गाना चलाया ना, ये बहुत मार खाएगा मुझसे। किसने चलाया? वो ये कौन है घुसा जिसने चलाया है?